بچنے کے لیے مکہ جیسا شہر چھوڑ دیا اور کربلا کی سرزمین پر پہنچ کر آقا حسین نے یزید جیسے ظالم فاسق فاجر شرابی زانی کے سامنے حسین نے کہا تھا، اے یزید کے اے چمچو، اے یزید کے گورنروں، تم کیا سوچتے ہو کہ حسین جھک جائے گا؟ حسینی کبھی جھکتا نہیں ہے، حسینی کبھی ڈرتا نہیں ہے، حسینی اگر ایک ہو تو 72 نہیں 72,000 پر وہ کاری پایا جاتا ہے، لیکن سچا حسینی ہوگا تاب یہ تلتلیہ حسینی نہیں، سچے حسینی کی بات کر رہا ہے۔ 72 ہیں ادھر کربلا کی سرزمین پر، 22,000 ادھر لشکر جرار ہے، تیر بھی ہے، بھالا بھی ہے، نیزہ بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، ہاتھی بھی ہے، پورا لاہور لشکر ہے یزیدیوں کے سامنے، اور ادھر میرے آقا حسین تنے تنہا آپ ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے چھوٹے بیٹے ننھے 6 مہینے کے اصغر بھی پائے جا رہے ہیں، آپ کی پیاری بیوی حضرت شہربانو بھی ہے، حضرت ام رباب بھی ہے، آپ کی لخت جگر نور نظر 6 سال کی بچی سکینہ بھی ہے، آپ کی وہ پیاری بہن جن کا نام حضرت زینب ہے، حضرت زینب بھی موجود ہے، اور ان کی دونوں جو ہے دونوں بیٹے اور محمد بھی موجود ہے، کل ملا کے صرف 72 یا 82 نفوس قدسیہ تھے۔ حضرات سوچا تھا یزید نے کہ میرا لاہور لشکر دیکھ کر حسین گھبرا جائیں گے، حسین سے کہا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ پیغام یہ ہے یزید کا، یا تو آپ حسین یا تو یزید کی بیعت کر لو، یعنی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دو، یا تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے آقا حسین کا چننا حسینیوں دل کے تختی پر نیٹ کرو۔ حسین پاک نے کہا تھا اے یزید کے لشکر و سپاہ، جانتے ہو حسین کے اس پاک ہاتھ کو نانا مصطفیٰ پاک نے چوما ہے، ایک بار نہیں چوما ہے، نہ جانے کتنے بار میرے نانا نے میرے اس پاک ہاتھ کو چوما ہے۔ اے ظالم یزید نے حسین اپنے گردن کو تو کٹوا سکتا ہے، مگر پاک ہاتھ کو میرے نانا پاک نے جو چوما ہے، یزید جیسے شرابی اور زانی کے ناپاک ہاتھ پہ حسین ہاتھ نہیں دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے۔ ظالموں نے کہا تھا حسین تو دیکھ لو نہر فرات کا جو دھارا ہے اس پر 500 کا قبضہ ہے، تم کو ایک چلو پانی نہیں مل پائے گا حسین، تڑپ تڑپ کے جان چلی جائے گی، اور اگر تم نے بیعت قبول کر لیا تو حسین تمہیں پانی ہی نہیں بلکہ تم کو بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ میرے آقا حسین نے کہا تھا میں ویسے ہی بادشاہ ہوں، میرے نانا مصطفیٰ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے۔ اور اے یزیدیوں اور اے یزید والے سنو، یہ جو آج یزید تخت پہ بیٹھا ہے، پوچھو اس ظالم سے اس کے باپ کا ہے کہ رسول پاک کا ہے؟ تو کہا تھا نہیں رسول پاک کا ہے، تو کہا یہ تو ظلمن بیٹھ گیا ہے، ورنہ بادشاہ تو میں ہی روحانی بادشاہ ہوں۔ کہا حسین کربلا کی میدان میں بہت خون بہے گا۔ حسین کے سامنے کہا گیا اے حسین سن لو، اکبر کی جوانی کربلا میں مٹے گی۔ حسین پاک نے کہا صبر کر لوں گا۔ کہا قاسم کی جوانی کربلا میں مٹ جائے گی۔ حسین پاک نے کہا صبر کر لوں گا۔ کہا ننھا اصغر تمہارا تمہارے گود میں تڑپڑا کے چاند دے دے گا۔ حسین نے کہا صبر کر لوں گا۔ کہا زینب کی اماری اور محمد جو 6 سال اور 7 سال کے ہیں، حسین اسی کربلا میں مٹ جائیں گے۔ حسین نے کہا صبر کر لوں گا۔ کہا تمہاری بہن زینب کے سر سے دوپٹہ کھینچا جائے گا۔ حسین نے کہا صبر کر لوں گا۔ کہا تمہارے جسم پر 73 زخم اور پھالے پڑیں گے اور شہید کر دیے جاؤ گے۔ حسین نے کہا صبر کر لوں گا، لیکن سب کچھ صبر کر سکتا ہوں مگر مصطفیٰ جان رحمت میرے نانا نے جو مقدس دین عطا کیا ہے اس دین پر آ چاہے حسین کو گوارا نہیں ہے، یہ حسین صبر نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا نے دیکھا مسلمانوں یہ 72 نفوس قدسیہ کربلا کی سرزمین پر شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد آخر میں میرے امام گئے تھے، اور اس کے بعد لڑتے لڑتے جمعہ کے دن میرے امام جب سجدے میں گئے تھے تو پورے جسم سے
सजदा में जब गए थे तो मेरे हुसैन पाक ने मदीना की तरफ चेहरा करके कहा था, क्या अदू के सर पे जब तेग तौले, अदू के सर पे जब तेग तौले, हुसैन सजदे में गिर के बोले, क्या मदीने वाले गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है, मदीने वाले गवाह रहना। इतने भयानक माहौल में भी, तीरों तलवार के मैदान में भी मेरा हुसैन नमाज नहीं छोड़ा। और आज हुसैन के चाहने वाले, आज हुसैन का नारा लगाने वाले, आज हुसैन के नाम पर जन्नत की भीख मांगने वाले मुसलमान ये सोचते हैं हम नमाज नहीं पढ़ेंगे जन्नत में चले जाएंगे, हम रोजा नहीं रखेंगे जन्नत में चले जाएंगे, हम कुरान नहीं पढ़ेंगे जन्नत में चले जाएंगे, हम नबी से मोहब्बत नहीं करेंगे जन्नत में चले जाएंगे, हम गुनाह पे गुनाह करेंगे जन्नत में चले जाएंगे। सुन लो, अगर ये तुम्हारी सोच है तो तुम्हारी भूल है, भूल है, भूल है। और मुस्तकीम कादरी हमेशा इस बात को कहता है, करके नहीं गुजारा था। आधी रात मेरे इमाम ने कुरान की तिलावत किया था, आधी रात रब की इबादत किया था। जो जन्नत का मालिक है यार, जन्नत के इजाजत जिसे दे देंगे हुसैन वो जन्नत में चले जाएंगे। वो हुसैन पाक, कितना खौफ था उनके सीने में, ये भी आपको अगर मैं बता दूं। मैं चूंकि दोस्तों हमेशा वो बात बताने की कोशिश करता हूं जिससे एक आदमी सुधर जाए। अगर एक भाई मेरा सुधर गया तो अल्लाह उसकी वजह से मुझ गुनहगार को बख्श देगा। मैं पापी हूं, मैं सियाकार हूं, मैं गुनहगार हूं। दोस्तों एक बहुत बड़े इमाम हैं जिनका बयान है हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा। आप फरमाते हैं कि मैं गया काबा का तवाफ करने, तो मैं काबा शरीफ का तवाफ करने लगा तो वहां जो मीज़ाब रहमत है, मीज़ाब रहमत के करीब जब मैं पहुंचा तो बारिश के अय्याम भी नहीं थे और मीज़ाब रहमत के परनाले से पानी टपक रहा था। पानी जब टपक रहा था तो दो चार कतरे मेरे जिस्म पर पड़े तो मैंने देखा, सर उठा करके तो कहा मौसम भी बारिश का नहीं है, ये पानी के कतरे कहां से आ रहे हैं। आप फरमाते मुझे बेहद ताज्जुब हुआ। मैंने अपने कान को लगाया, काबा शरीफ से अपने कान को जब लगाया तो किसी के सिसक सिसक के रोने की आवाज आ रही थी। कोई काबा पर, काबे से चिमट के कोई रो रहा था। हजरत अल्लामा हसन बसरी फरमाते हैं कि मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि आदमी अल्लाह के रहमत से नाउम्मीद हो चुका है और इस कदर रो रहा है, इस कदर रो रहा है, लाओ देखो कौन है। जब ऊपर कहते हैं मैं छत पे चढ़ के गया तो मैंने क्या देखा कि एक सफेद कपड़े में मलबूस सर सजदे में रखे हैं और उसके बाद काबा की छत से चिमटे हुए यही कह के रो रहे हैं, ये मेरे मौला तू मुझे माफ फरमा दे, हे मेरे मौला तू मुझे बख्श दे, हे मेरे मौला तू बहुत बड़ा है, ये मेरे मौला तू बहुत बड़ा है, ये मेरे मौला जिसे तू बख्शेगा वही बख्शा जाएगा, जिसे तू नहीं बख्शेगा कोई बख्शा नहीं जा सकता है। ये मेरे वहदहू ला शरीक तू मुझे माफ फरमा दे, मेरी मगफिरत फरमा दे। हजरात अल्लामा हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं सोच रहा था कि लाओ उठाऊं, कि इतने में वो अपनी दुआ से अपने सर को उठाए जब तो मेरी आंखें खैरा रह गई देखकर, मैं ताज्जुब में पड़ गया। मैंने कहा तो मैं तो सोचा था कोई आम इंसान होगा जो अल्लाह के खौफ से इस कदर रो रहा है। जब मैंने देखा गौर से तो कोई और नहीं था, शहीदों के इमाम इमाम हुसैन थे जो रो रहे थे इस कदर। हुसैन करबला वाले थे जो रो रहे थे काबा शरीफ के छत पर इस तरीके से। ए मुसलमानों, अल्लाह के खौफ से इमाम हुसैन रो रहे हैं, अल्लाह के खौफ से मदीने वाले मुस्तफा रातों रात रोते थे। आप तारीफ उठाकर देखिए तब पता चलेगा। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है मेरे आका नमाज पढ़ा के आते ईशा की, उसके बाद फरमाते आयशा मुसल्ला लाओ, मैं मुसल्ला पेश करती, हुजूर मुसल्ला बिछा देते, पूरी रात खड़े होकर के
इतना रोते अल्लाह से, इतना रोते कि आपके आंसू मुबारका से आपके दाढ़ी मुबारका तर हो जाती, यहाँ तक कि आपके दाढ़ी मुबारका से आंसू के कतरे टप 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 नीचे गिरते। अम्मा आयशा सिद्दीका बयान फरमाती है, मेरे आका इस कदर रोते थे कि जैसे ही हांडी में पानी रख दो खौलने लगता है, ऐसे ही आपके सीने से खौलने की आवाज आती थी। और आप जब खड़े रहते थे तो पूरी रात खड़े होने की वजह से आपके पाए मुबारका में वरम आ जाया करता था, आपका पाँव मुबारक सूज जाया करता था। हजरात गिरामी वकार, सोचो मेरे आका सैयदुल मासूमीन है, सारे मासूमों के सरदार हैं, अरे आपसे गुनाह हो ही नहीं सकता है, फिर भी अल्लाह से रो रहे हैं, फिर भी अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं। आज हम कितने निडर हो गए हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। आज खौफे खुदाबंदी हमारे सीने में बचा ही नहीं है। हम कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, हजारों गुनाह हम करते हुए नजर आ रहे हैं और हम कह रहे हैं हम अल्लाह से डरते हैं। जब आप अल्लाह से डरते तो आप गुनाह न करते, या आपसे अगर कोई गुनाह हो जाता तो उस पर आप नादिमो शर्मिंदा हो जाते और उस गुनाह पर आप अपने मौला की बारगाह में माफी चाहते। एक लफ्जिश पर आप माफी मांगते अल्लाह से कि ये मेरे मौला, ये मुझसे भूल हो गई। आज तो लोग इतना गुनाह कर रहे हैं, इतना गुनाह कर रहे हैं कि अगर चाहा तो वैसे ही तो गुनाह करते ही है। लोगों को दिलों को तकलीफ देना, लोगों के घर बार को उजाड़ना, लोगों को बर्बाद करना, ये लोगों ने आम सेवा बना लिया है अपना। कहीं कुछ किया तो अपने हाथों के जरिया, किसी गैर ऐसे के लोगों के जरिया जो हराम खोरिया करते हैं, जो दीन के नाम पर पैसा खा करके और अपने ताबीज और डंडे के जोर पर अपना शिकंजा चलाते हैं, ऐसे कमीनों के पास पहुंच करके और जिंदगियों को बर्बाद करने की कोशिशें करते हैं। लेकिन कान खोल करके सुन ले, वो मुसलमान ही नहीं है जिस मुसलमान की जबान से या जिस मुसलमान के हाथ से दूसरा मुसलमान सलामत ना रहे। आज देखिए, आज झगड़ा हो जाए आपस में तो लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, सगा भाई सगे भाई का दुश्मन हो जाता है। अरे यार, तुम वो जमाना भूल गए कि हुसैन और हसन में कैसी मोहब्बत थी। आखिर वो मोहब्बत भी तो देख लीजिए। इखवत मोहब्बत भाईचारा अगर अपने अंदर कायम नहीं करोगे, आज एक सगा भाई दूसरे भाई के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाता है और कहता है कि 20,000 के बजाय 50,000 लग जाए, 1 लाख लग जाए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे उस भाई को घसीट के लाओ जेल खाने में और इतना डर्रे और इतने लाठी बरसा दो उसके ऊपर ताकि मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। अब तेरा जमीर कितना मुर्दा हो चुका है। जिस माँ के पेट से तू पैदा हुआ है उसी माँ के पेट से तेरा वो भाई भी पैदा हुआ है। और अगर आज तूने उसके जुर्म को माफ कर दिया होता तो अल्लाह कल कयामत के दिन तेरे सारे जुर्मों को माफ कर देगा, तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन जब तू माफ करेगा तो अल्लाह तुझे माफ करेगा, अगर तू माफ नहीं करेगा तो अल्लाह तुझे भी माफ नहीं करेगा, किसी कीमत पर माफ नहीं करेगा। हजरात गिरामी वकार, सबसे बड़ा गुनाह क्या है आप समझने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ी नेकी क्या है? लोग समझते हैं 5 वक्ता नमाज पढ़ ले यही सबसे बड़ी नेकी है। लोग ये समझते हैं कि हम हज कर लिए ये बहुत बड़ी नेकी कमा लिए। लोग ये समझते हैं हम रोजा रख लिए बहुत बड़ी नेकी कमा लिए। लोग ये समझते हैं हम कुरान पढ़ रहे हैं बहुत बड़ी नेकी कमा रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि हम जो है अच्छाई की दावत दे रहे हैं बहुत बड़ी नेकी कमा लिए। लेकिन सुन लीजिए और इसका बात को मुस्तकीम कादरी के नोट कर लेना, बहुत बड़ी बात को बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी नेकी क्या है और सबसे बड़ा गुनाह क्या है, इसी को समझ लो। इंशाअल्लाह अगर इस पर अमल कर लिए तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी तुम्हारी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हजरात गिरामी वकार, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि 2 दिलों को तोड़ दो, 2 दिलों को तोड़ दो, 2 खानदान को अलग कर दो, 2 घर को उजाड़ दो, मियाँ बीवी में नफरत कर दो, भाई भाई में नफरत कर दो, घरों को तबाह बर्बाद कर दो। ये सबसे बड़ा गुनाह है। और सबसे बड़ी नेकी क्या है?
सबसे बड़ी नेकी ये है, दो टूटे हुए दिल को एक कर, दो टूटे हुए दिल को एक कर दो, दो बिछड़े हुए को मिला दो, दो खानदानों को एक कर दो, गांव को एक बना दो और दो मुसलमान को एक सीने से मिला दो। ये सबसे बड़ी नेकी पाई जा रही है। और इसको मैं वाकई की रोशनी में आपको समझा दूं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जो कुंवारी थी। दोस्तों, यही एक बीवी सरकार की कुंवारी थी, बाकी सब बेवा थी। एक दिन नबी की खिदमत कर रही थी और इनके वालिद का नाम अबू बकर सिद्दीक है, जो नबी के पहले खलीफा और यार और दोस्त हैं। दोस्तों, और जो सारे नबी और रसूलों के बाद जो सबसे ज्यादा मर्तबे वाला है वो जात हजरत अबू बकर सिद्दीक का पाया जा रहा है। अब अम्मा आयशा सिद्दीका खिदमत कर रही थी। ऐसा खिदमत किया अम्मा आयशा सिद्दीका ने कि मेरे आका खुश हो गए। जब खुश हो गए तो मेरे आका ने फरमाया, मांगो मांगो आयशा, क्या मांगती हो? मैं नबी आज तुमको यहीं बैठे बैठे अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह। कहा मांगो। अब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोचती है, क्या मांगू? कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मौका आपने दिया ही है तो इतना मौका दे दीजिए कि मैं अपने अब्बा से जाके पूछ लूं क्या मांगू। अपने अब्बा से जाके पूछ लूं। बोलो यार, बंद कर दो। चूंकि मेरे भी पेट में आज दर्द और तकलीफ है, लेकिन ये तो मोहब्बत है आप लोगों की। मैं चला आया और मैं सोचता हूँ कुछ बातें आपको बताऊं ताकि आपकी मुस्तकबिल संवर जाए, आपकी आखिरत संवर जाए और आप ऐसे कामों से बचे, हम भी बचे, आप भी बचे, ताकि आपकी आखिरत खराब ना होने पाए भाई। तो कहा, हुजूर इजाजत दे दो कि अब्बा हुजूर से पूछ लूं क्या मांगू। आका मेरे मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह। आका के मुस्कुराने पर आप भी मुस्कुरा दे। और मेरे नबी जब मुस्कुराते थे, अल्लाह अल्लाह, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, आला हजरत सरकार फरमाते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आका मुस्कुराए और फरमाया, आयशा तुम बड़ी होशियार हो, मैंने तुमसे कहा है मांग लो, तुम कहते हो इजाजत दे दो, अब्बा से पूछाऊं। अच्छा जाओ, इजाजत है, अब्बा से पूछाओ। अब गई, दौड़ती हुई गई अब्बा हुजूर के पास। अस्सलाम वालेकुम। कहा, वालेकुम सलाम बेटी, खैरियत तो? कहा, हाँ अब्बू, आज मैंने अपने शौहर की इतनी खिदमत किया, इतनी खिदमत किया अपने शौहर की कि आज वो इतना खुश हो गए मेरे आका कि फरमाते हैं मांग लो आयशा जो मांगना हो। तो अब्बू मैं क्या मांगू, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा जन्नत मत मांगना। क्या कहा? जन्नत मत मांगना। तो कहा क्यों अब्बू? कहा, रे तू जिस नबी की बीवी है वो तो मालिके जन्नत है। तो कहा फिर क्या मांगू? कहा इज्जत भी मत मांगना, इससे बड़ी इज्जत तुझे क्या मिलेगी कि नबियों के सरदार की तू बीवी है। कहा कौसर भी मत मांगना, क्यों? इसलिए कि कौसर का मालिक तुम्हारा शौहर हमारे आका पाए जा रहे हैं। कहा फिर क्या मांगो अब्बू, वो बता दीजिए। कहा बेटी मैं बताता हूँ, वही मांगना नबी से। कहा वो क्या है बताइए। कहा मेरे नबी जब मेराज की रात में अल्लाह को देखने गए थे, अल्लाह से मिलने गए थे, तो अल्लाह और रसूलुल्लाह के दरमियान 3 राज की बात हुई थी और अल्लाह ने फरमाया था, महबूब ये 3 राज को राज रखना। एक राज है ऐसा कि अगर चाहना तो बता देना, तो कह दो ए आयशा कि या मेरे आका, अल्लाह से जो 3 राज की बात हुई थी उन तीनों में से एक राज की बात। राज की बात उसे कहते हैं कि 2 के अलावा तीसरा ना जाने, वही राज है। अब आई ये सरकार की बारगाह में। आका ने फरमाया क्या हुआ ऐसा? पूछ आई? कहा हाँ। कहा क्या कहा तुम्हारे अब्बू ने? कहा या रसूल अल्लाह जब मेराज की रात में आप अल्लाह से मिलने गए थे तो 3 राज की बात हुई थी, उन 3 राज के बातों में से एक बात बता दीजिए। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कितने होशियार हैं अबू बकर, कितने होशियार हैं अबू बकर।
और अबू बकर से ज्यादा इल्म वाला कोई नहीं था यार सहाबा में सबसे ज्यादा इल्म वाले थे, राजदारे नबूवत थे अबू बकर सिद्दीक। हाँ, चुनांचे कहा बहुत होशियार है मेरे सिद्दीक, बहर कैफ वादा तो कर ही लिया हूं बताने का, तो अगर पूछा है तो आज बता दूंगा। बोलो बोलो क्या कहा है? कहा हुजूर वो 3 राज की बातों में से एक राज की बात बता दीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा मैं जब अपने मौला से मिलने के लिए गया तो वहाँ कोई फरिश्ता नहीं था, वहाँ कोई इंसान नहीं था, वहाँ मकान भी नहीं था, लामका में गया, लामका। और मेरे अल्लाह के दरमियान सिर्फ 2 कमानों का फासला था, और मैंने अपने अल्लाह को ऐसे देखा टकटकी लगा के कि माँ ज़गल बसरो व मा तगा, न निगाह झपकी न नजर गई। अल्लाह वो मूसा कलीमुल्लाह से कहा था मौला देखना चाहता हूँ, अल्लाह ने फरमा दिया लन तरानी, हरगिज नहीं, न तेरी आंख न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो है मूसा निगाहे मुस्तफा देखे। और वो मेरा नबी इतना आला नबी कि मेरे नबी ऐसे अल्लाह को देखे, ऐसे देखे कि फरमाते हैं न निगाह झपकी न नजर बहकी। इस तरीके से रब को देखा आपने। अब उसके बाद फरमाते हैं कि मेरे मौला से और मुझसे ये बात हुई थी कि ए महबूब, आपकी उम्मत का जो भी मुसलमान ईमान वाला 2 दिलों को जोड़ देगा। बोल दो यार, बोल दो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बड़ी ऊंची बात कहने जा रहा हूँ। जो 2 दिलों को जोड़ देगा, ये वादा किससे हो रहा है? अल्लाह और उसके रसूल से। जो 2 दिलों को जोड़ देगा, कल कयामत के दिन मैं अल्लाह होकर उससे ये नहीं पूछूंगा नमाज पढ़ा, रोजा रखा, नेकी किया कि नहीं, बिला हिसाब उसे जन्नत में डाल, बिला हिसाब बिला किताब उसे मैं जन्नत में डाल दूंगा, दाखिल कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों। अब अम्मा आयशा सिद्दीका खुश हो गई। अब बहुत आसान नुस्खा है ये तो, 2 जने लड़ाई क्यों है, एक कह दो जन्नत में चले जाओ। अब भागती हुई आई अब्बू के पास अपने, कहा अब्बू बहुत आसान नुस्खा नबी ने दिया है। कहा क्या कहा बेटी? कहा यही बात तो हुई है कि जो 2 दिलों को जोड़ देगा उसका ना नमाज ना रोजा ना हज कुछ नहीं, अल्लाह बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह अल्लाह। अब अम्मा आयशा ने सोचा था कहूंगी तो मेरे अब्बू खुशी में मचल जाएंगे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ज़ारो कतार रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। अम्मा आयशा ने कहा अब्बू रो क्यों रहे हो? अब्बू ये तो खुशी की बात है, तो दिल को जोड़ देना आसान है, आप रोते क्यों हो? तो आंसू को पोंछते हुए अबू बकर सिद्दीक ने कहा था बेटी आयशा, तूने एक पहलू तो देखा मगर दूसरा पहलू नहीं देखा। अरे उसका दूसरा पहलू इस हुक्म का ये है, जो 2 दिलों को जोड़ देगा अल्लाह उसे बिला हिसाब जन्नत में दाखिल करेगा। और इसका दूसरा पहलू ये है, जो 2 दिलों को तोड़ देगा अल्लाह उसे जहन्नम में धकेल देगा, अल्लाह उसे जहन्नम में धकेल देगा। अब ये बात सबसे अहम है कि हमारी वजह से किसी का दिल तो नहीं टूटा है, हमारी वजह से किसी का घर तो नहीं बर्बाद हो रहा है, हमारी जात से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। और ये बहुत बड़ी बात है, इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब बंदा इसी पर आ ही जाएगा कि मैं अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं होने दूंगा, इसलिए कि मुझे किस में जाना है? बोलो जन्नत में। और जिनको जहन्नम में जाना है वो तकलीफ भी देंगे, तकलीफ पर तकलीफ भी देते जाएंगे, मगर तुम सब्र करते जाओ। इंशाअल्लाह अगर तुमने सब्र किया है तो आका हुसैन के सदके तो फैल में सारे साबरीन हुसैन के पीछे जन्नत में जाएंगे। और सबसे बड़ी इबादत है ये सबसे बड़ी इबादत है। इस दिल के अंदर किसी के लिए वो हसद नफरत मोमिन के लिए मत रखो। हाँ जो गलत है उसके लिए रखो। ये कह रहा हूं
जो गलत है तो गलत को गलत कहा जाएगा, इसके लिए रखो। सबसे बड़ा वजीफा यह है कि आप अपना दिल साफ रखो, आप अपना दिल साफ रखो। अगर दिल में आपके कीना है, आप रात दिन मुसल्ले पर खड़े रहिए, बेकार है, बेकार है, बता दे रहा हूं आपको। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन सहाबा किराम बैठे हुए थे, आका ने फरमाया जन्नती मर्द देखना चाहते हो सहाबा, जन्नती मर्द को देखना चाहते हो? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हाँ देखना चाहते हैं। जब सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह देखना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल फजर की नमाज में जो सबसे पहले नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आएगा, देख लेना वही जन्नती मर्द है। अब बताओ, नमाज तो सब सहाबा पढ़ते थे, 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 सब नमाज पढ़ते थे, यहां तक कि वो तहज्जुद की भी नमाज पढ़ते थे भाई। अब देखिए, नबी ने फरमाया जो सबसे पहले कदम रखेगा मस्जिद वही जन्नती मर्द है, उसी को देख लेना। अब हर किसी के दिल में हसरत थी कि हम ही सबसे पहले पहुंच जाएं मस्जिद में ताकि हम जन्नती हो जाएं। अब सहाबा ने क्या देखा कि एक सहाबे रसूल है, वो आए तो वो जूता जो है अपना ऐसा बगल में दबाए हुए थे, जूता अपना बगल में दबाए हुए थे, और आए और आने के बाद जूता उतारा और उतारने के बाद सबसे पहले मस्जिद में कदम रखा। अब जो दूसरे सहाबी आए थे दूसरे नंबर पे चेहरा देख रहे हैं, आज तो पीछे रह गया। अब तीसरे सहाबी आए, या जन्नती मर्द यही है बाबू, सबसे पहले कदम रखे हैं यही मस्जिद में आकर के। सारे सहाबा ने देख लिया उनको, सबने देखा। अब उसके बाद दूसरा दिन आया, फिर आका बैठे, फिर आका ने फरमाया जन्नती मर्द देखना चाहते हो? सबने कहा या रसूल अल्लाह हाँ। तो कहा जो सुबह सबसे पहले फजर में मस्जिद में आएगा उसी को देख लेना, वही जन्नती मर्द। अब फिर दूसरा दिन आया, फिर सहाबा यही सोच में थे पहले पहुंच जाए, मगर कौन सबसे पहले पहुंचा? वही सहाबे, वही पहले वाले दिन वाले ही पहले पहुंच गए। अब वो सहाबे रसूल जब पहुंचे, एक सहाबे रसूल ने सोचा कि यार कौन सा ऐसा नेकी ये करते हैं कि इनको नबी ने दुनिया ही में जन्नती मर्द बता दिया, कौन सा ऐसा वजीफा करते हैं, अमल करते हैं। तो कहा अब मैं इनका पीछा करूंगा। लोग नेकियों में पीछा करते थे और आज तो लोग बुराइयों में पीछा करते हैं। यार ये मुसलमानों की हालत हो चुकी है कि हम बुराई में पीछा करते, और सहाबा वो थे कि नेकियों में कहते थे हम आगे जाएंगे, इनको पिछाड़ देंगे। कहा हम आप देखेंगे कि ये कौन सी नेकी करते हैं ताकि मैं भी वो नेकी करूं। अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों, वो सहाबे रसूल जब ये नमाज पढ़ के निकले तो कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम, कहा मैं आपके घर चलना चाहता हूँ। कहा खैरियत? तो कहा ऐसे घर में कुछ बातें हो गई, बस घर रहने का दिल नहीं कह रहा, आज आपके घर चलूंगा। कहा चलिए। लेके घर गए, अपने घर ले जाने के बाद इनको बिठाया बरामदे में और अपना अंदर गए। अंदर जाने के बाद पानी लिए और पानी लेने के बाद खजूर लाए, इनको पेश किया, पानी और खजूर दिया, इन्होंने पानी पिया और उसके बाद ये बैठ गए। अब ये घास लेके आए थे जानवर के लिए, उसको बालना शुरू कर दिया। अब वो सब किए, जानवर को भी खिलाए पिलाए, फिर उसके बाद अपना बैठे, मेहमान को बिठाए, दोनों लोग खाना खाए। खाना खाने के बाद बिस्तरा लगा दिया, कहा आप लेटिए, आराम करिए, मैं भी लेट जाता हूँ। अब ये भी लेट गए, वो भी लेट गए। पानी रख दिया कि रात में जरूरत होगी तो ले लेना। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये पूरी रात जो पकड़ने के लिए गए थे साहबे रसूल की क्या पढ़ते हैं, ये पूरी रात लेटे जागते रहे कि अब उठेंगे पढ़ेंगे, अब उठेंगे पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कोई वजीफा, अब करेंगे। लेकिन वो साहबे रसूल पूरी रात खूब अच्छे से सोते रहे और उसके बाद जब करवट बदलते थे ना तो सिर्फ यही इतना कहते थे अल्लाहु अकबर। क्या कहते थे? अल्लाहु अकबर। सिर्फ यही अल्लाह का नाम लेते और करवट बदलते। तहज्जुद का टाइम आया तब उठे, वो भी तहज्जुद के टाइम उठे, दोनों लोग वजू के तहज्जुद की नमाज पढ़े, फजर की नमाज पढ़े, कोई वजीफा नहीं किया उन्होंने। दूसरे दिन फिर गए, हो सकता है इन्होंने छुपा लिया हो आज वजीफा, आज रहूंगा इनके साथ में। दूसरे दिन भी बस यही मामूल रहा। तीसरा दिन जब आया तो इन्होंने कहा भाई जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम।
कहा अरे भाई आए तो थे आप मेरे घर पे और 2 दिन ठहरे रहे, लेकिन किस वजह से आए ये तो बता दीजिए, किस वजह से आए थे ये तो बता दीजिए। कहा भाई जो वजह से आया था वो वजह हमें मिल ही नहीं पाया। कहा किस वजह से? कहा हम लोग नबी के पास बैठे थे, नबी ने फरमाया जन्नती मर्द देखना चाहते हो तो देख लो, आप ही सबसे पहले आए थे और हम इसलिए आपके घर आए थे कि आप कौन सा वजीफा करते हैं जिस वजह से नबी ने आपको दुनिया ही में जन्नती फरमा दिया। कहा मेरा वजीफा ऐसा है कि 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगे फिर भी नहीं पकड़ पाओगे, पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगे फिर भी पकड़ नहीं पाओगे। तो कहा क्या वजीफा आप करते हो भाई, वो वजीफा मुझे भी तो बता दो। कहा वो वजीफा ये है कि इस दिल के अंदर किसी मोमिन के लिए हसद नहीं रखता है, इस दिल के अंदर किसी मोमिन के लिए मैं हसद नहीं रखता हूँ, बुग़्ज़ नहीं रखता हूँ, किसी से नफरत नहीं रखता हूँ। अगर कोई बात होती है तो उसको मैं खत्म कर देता हूँ। यही वो नेकी है कि अल्लाह के रसूल ने मुझे दुनिया ही में जन्नती राते गिरामी वक़ार, इस बात पर हमें अफसोस होता है कि आज हमारा माहौल, आज बेटा बाप से नहीं बातें कर रहा है, आज भाई भाई से नहीं बातें कर रहा है, आज पड़ोसी वाला पड़ोसी वाले से बातें नहीं कर रहा है, आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन नजर आ रहा है, आज एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का दुश्मन नजर आ रहा है। आज नफरतों का वो बाजार आपस में गर्म हो चुका है कि लोग एक दूसरे से नफरत करते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात, इस चीज को जब तक हमारे दिल से ये चीज खत्म नहीं होगा, हम ईमान की हलावत को पा नहीं सकते हैं। दुनिया सब कुछ हम अपना बना लेंगे, मांगेंगे तो उनको खौलता हुआ तेल दिया जाएगा पीने के लिए। और एक रिवायत में आया है जहन्नमी जब प्यासे होंगे पानी मांगेंगे तो उनको पीप दिया जाएगा पीने के लिए। जब भूखे होंगे खाना मांगेंगे तो उनको बड़ा बड़ा कांटा दिया जाएगा खाने के लिए, उनके मुंह में कांटा डाल दिया जाएगा। और जब कांटा डाल दिया जाएगा वो दबा के उसको लीलना चाहेंगे तो इसी हुलकूम में जब पहुंचेगा कांटा तो इधर से इधर चारों तरफ से कांटा निकल जाएगा और उसके बाद निकला रहेगा, गले में फंसा रहेगा कांटा। जब गले में कांटा फंसेगा तो वो कहेंगे पानी पानी पानी, और पानी जब मांगेंगे तो एकदम खौलता हुआ तेल उनके मुंह में जब डाला जाएगा तो उनकी वजड़ियां पचौनियां सब सड़ के गल के सब नीचे गिरना चालू हो जाएंगी। और उसके बाद दोस्तों हालत ये होगी कि इसी हालत में वो अपनी जिंदगियां गुजारेंगे। अब मौत भी नहीं आएगी कि दोबारा मर के फिर उनको मौका मिल जाएगा कि जन्नत में चले जाए। लिहाजा अगर अल्लाह न करे वो अमाल मत करो गंदे की कहीं जहन्नम में झोंक दिए जाओ। अगर खुदा न खास्ता जहन्नम में झोंक दिए गए और हमेशगी के लिए जहन्नमी बन गए दोस्तों, तो ये दुनिया यार की मरने के बाद दूसरा मकाम तुम्हें कब्र मिलेगा, कब्र के बाद दूसरा मकाम हश्र मिलेगा, हश्र के बाद आखिरी स्टेज है हश्र दोस्तों। वही फैसला जहन्नमी और जन्नती का होगा। अगर जन्नत में चले गए तो फिर जन्नत की मजा भी अजीब है दोस्तों। दुनिया की तकलीफें अगर तुमने झेल लिया है, मुसीबतें बर्दाश्त कर लिया है तो फिक्र मत करो, जन्नत में जाने के बाद सारी मुसीबतें भूल जाओगे मेरे भाई। मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा है कि जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो उसको वो नेमत मिलेगी कि अगर जन्नती ऐसे बैठे रहेंगे, अपने महल में बैठे रहेंगे और उसके बाद उनका दिल कहेगा क्या कि हमें फला दरख्त से फल खाना है, फला दरख्त से फल खाना है। सिर्फ वो ये सोचेंगे कि वो दरख्त की टहनियां शाखें ऐसे ही झूलती हुई आएंगी और फल लटकते हुए आएंगे आपके मुंह के करीब, सिर्फ आपको मुंह लगा करके फल खाना रहेगा। और अगर आपने ये सोच लिया जन्नत में कि हमें भुनी हुई चिड़िया अगर मिल जाती तो ऐसे ही भुनी हुई चिड़िया आपके सामने आके पहुंच जाएगी और आप खाएंगे। और अगर आप पानी चाहेंगे पीना तो जन्नत का वो पानी होगा मेरे भाई जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा। अगर आदमी उसे एक बार पी लेगा तो पूरी जिंदगी में कभी प्यास नहीं लग सकती है। और जन्नत वो मकाम है कि एक अदना जन्नती को अल्लाह 72 हूर अता फरमाएगा। एक अदना जन्नती को इतनी जगह मिलेगी, इतनी जगह मिलेगी कि 11 दुनिया के बराबर जगह
उस जन्नती को मिलेगी जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा दोस्तों। लिहाजा हमको और आपको यही सबक हमें आपको हासिल करना है कि हमें जन्नत में अगर जाना है तो रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, नमाज हमें पढ़ना पड़ेगा, रोजा रखना पड़ेगा और हर गुनाह से, सगीरा कबीरा गुनाह से बचने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जब इस चीज पर आप अमल पैरा हो जाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज दुनिया से आप मरेंगे तो बेईमान होकर नहीं मरेंगे, बल्कि ईमान पर ही आपका खात्मा होगा। और अपने सीने में अगर औलिया की मोहब्बत आप रखे हैं, वैसे पाक की सच्ची मोहब्बत रखे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की सच्ची मोहब्बत रखे हैं, दाता अली हजगरी की सच्ची मोहब्बत रखे हैं, सैयद सालार की सच्ची मोहब्बत रखे हैं, मखदूम सिमरा की सच्ची मोहब्बत रखे हैं, सच्ची जो मोहब्बत है वो अगर आपके सीने में है तो इंशाअल्लाह वैसे पाक का दीवाना जिसके सीने में वैसे आजम की मोहब्बत है वो मरेगा ही नहीं दुनिया से जब तक कि उसका ईमान पर खात्मा नहीं होगा दोस्तों। लिहाजा बस मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ही पिलाया जाए जितना डोज आप जो है असर कर ले, इतना ना हो कि आप उसको असर ना कर पाए। चुनांचे दोस्तों तो आखिर बात यही मेरी है, आपसे मैं यही मुअद्दब